নজরে বাংলার সেরা কয়েকটি খবরে নজর রাখবো। ভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার কারণে বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। এমনই ঘটনা ঘটতে দেখা গেল মালদা ও বিভিন্ন জেলায়। মিশন 26কে কেন্দ্র করে অনুব্রত ও কাজলকে একসাথে থেকে কাজ করার আহ্বান জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কমিশনের এসআইআর এর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। বীরভূম থেকে মমতা ব্যানার্জির সফর শেষ হতেই আবার তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব দেখা গেল কাজল শেখ ও অনুব্রত গোষ্ঠীর অনুগামীদের মধ্যে, যার জেরে একাধিক তৃণমূল কর্মীরা আহত হয়েছেন। বঙ্গ সফরে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে খারাপ কাজ করলেই পদোন্নতি, অনুব্রত ও মমতা ব্যানার্জির কথোপকথন থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। লোকসভায় সায়নী ঘোষের তোপ কেন্দ্রকে, কারণ বিজেপি বারবার বলছেন রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। তার প্রতি উত্তরে সায়নী ঘোষ বলেন যে দিদি বাংলাদেশিদের ঢুকাচ্ছে আর কেন্দ্র সরকার জঙ্গি ঢুকাচ্ছে কেন? কৃষক বন্ধু টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে, সুখবর শোনালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। রাজ্য সরকারের নতুন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে বৈঠক করলেন গোয়ালপুকুর ব্লকের বিডিও ও রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী। বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্থার কারণে আতঙ্কে রয়েছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের লোকজনেরা। আজ রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানীর সাথে দেখা করলেন পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের লোকজনেরা। তাদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি যতদিন আছে কাউকে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। কিস্তির টাকা দাও আর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাও, এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় একটি বেসরকারি ব্যাংক অভিযুক্তদের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসে এবং মন্তব্য করে যে কিস্তির টাকা দাও আর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাও। এই ঘটনায় বলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ভোটার সংশোধন তালিকা নিয়ে যখন উত্তাল বাংলা, সেই মুহূর্তে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস 250টিরও বেশি সিট পাবে বলে মন্তব্য করলেন কুণাল ঘোষ। ভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থায় কি বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী, চলুন আমরা শুনে নেব। ये जो पुलिस हरियाणा पुलिस कर रही है, ये टोटली इनह्यूमन क्रूअल एक्टिविटीज कर रही है। पुलिस के वर्दी को ये बदनाम करने की एक तरह का साजिश है। और दूसरी बात, यहाँ हमको लग रहा है अब कि ये हमारे यहाँ के लोग बांग्ला बोलने से अगर इस तरह से टॉर्चर करे तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। एंड ये कहावत एक proverb है, लैंग्वेज इज द नेशनल यूनिटी ऑफ इंटीग्रेशन। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग इतने भाषाओं के देश में रहते हैं, इतने कास्ट कम्युनिटीज के देश में रहते हैं, और इतने सारा स्टेट है यहाँ। भाषा जो है विभिन्न जगह का विभिन्न भाषा होता है, लेकिन इस तरह से मानना बेहुरमती है एडमिनिस्ट्रेशन का, और क्रुएल्टी है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वहाँ का मुख्यमंत्री चला रहा है, मुख्यमंत्री को सोच समझ है ना नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी यहाँ है, हमारे बंगाल में इस तरह का एक्टिविटीज कभी हुआ है? देखें आप लोग, नहीं देखे हैं। यहाँ भी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है काम करने के लिए आते हैं। राजस्थान का हो, यूपी का हो, गुजरात का हो, केरल या आपके कहते हैं बिहार का हो, या छत्तीसगढ़ का हो, या उड़ीसा का हो, या केरल का हो, या तमिलनाडु का हो, या महाराष्ट्र का, सारे लोग तो यहाँ वर्क करते हैं। आज तक तो हम लोग नहीं किए हैं। आज कल हमारे मुख्यमंत्री बोलपुर में ये एक जो अनाउंसमेंट की थी, परिजय श्रमिक की एक स्कीम तैयार कर रही है वो, उन लोगों को लाने के लिए। तो हम मुख्यमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए दुआएं मांगते हैं कि हमारे परिजय श्रमिक जो आज इंसल्ट हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मार रहा है, वो अगर वो लोग आ जाए यहाँ काम में, हम लोग लगा दें, तो हमारे मुख्यमंत्री का जब तक ये दुनिया कायम रही तब तक उसका नाम जिंदा रहेगा। इस बात के लिए हम लोग मुख्यमंत्री का के लिए दुआ करते हैं। वो कल ही अनाउंसमेंट की है, आने का किराया भी की बात की। हाँ, वो सारा चीज वो करेंगे और स्कीम के तहत। और दूसरी बात, आज हमको अफसोस इस बात का हो रहा है कि वहाँ अभी गदरी गाँव जाएंगे हम, एक आदमी का मार के पैर तोड़ दिया है पुलिस। इतना बेदर्दी से मारा है कि वो उठने के लायक नहीं, चलने के लायक नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको किस तरह से मारा है आप लोग खुद ही देखे हैं जी। पीठ में लग रहा है चाबुक का निशान है, पूरा निशान है। उसके बाद एक औरत सुकड़ी नाम से, उसको जबरदस्ती पकड़ करके हरियाणा पुलिस जो है वो भेज दिया किसके पास? यहाँ मुर्शिदाबाद में। वो कहाँ का है? ग्वालपुर का है, उत्तर दिनाजपुर का है। यहाँ नहीं भेज करके वो मुर्शिदाबाद में भेज दिया है। बीएसएफ कैंप में अटका हुआ था, वहां से जो है
बीओपी को कहा गया है कि इसको पुशबैक कीजिए, आप जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की औरत है, लेकिन उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, उसका एपिक कार्ड, उसका जो है सारा प्रूफ इंडियन है। हमारे यहाँ का सिंधो का लड़की और औरत है, वो सुकड़ी नाम से, उसका प्रधान को हम भेजे थे। प्रधान जो है कल ही जाकर के वहाँ हमारा टीम जाकर के उस औरत को जो है, उस महिला को लेके आ रहे हैं कंचनकन्या से, और उसको अपने घर पहुँचाएंगे हम लोग। इस तरह का जुल्म और सितम जिस तरह से हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की एक साजिश है। यहाँ जिस तरह से दूसरे कंट्री में हुकूमतें चल रही है, उस तरह से हुकूमत चलाने की कोशिश की जाने की साजिश हो रही है। इस साजिश से मुक्ति होने के लिए हम लोग का ममता बनर्जी जी, हमारा मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी। वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमारे माइग्रेंट्स लेबर को बचाने के लिए और वर्कर्स को बचाने के लिए उनकी हमेशा आवाज़ उठी है उनकी तरफ से, और कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश के साथ हम लोग भी उनके साथ हैं। सारे लोग, सारे ग्वालपुर के लोग, सारे उत्तर दिनाजपुर के, सारे बंगाल के लोग हैं उनके साथ।